Hello everyone, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Debashri here. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Our daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. If you want to join Unacademy, you can join it with the help of my referral code DEBA1 to get the 10% off. You can say welcome discount or referral discount, 10% discount, right? So if we see the price list, if you join for 1 month, the price will be 2100, for 3 months 5250, for 6 months 9450, for 12 months it is 11550, and for 24 months it is 16800. If you use my referral code DEBA1, the price will be, you will be getting a 10% off, and the reduced amount will be 1890 4725 8505 10395 and 15120. So now today in this part, in this class, we'll be dealing with the types of species. Part 1 already we have covered up, and in part 2 we'll be discussing about the remaining portion of the part 1. So in part 1 we have seen about invasive species, right? We have seen keystone species, right? We have seen generalist species, we have seen specialist species. These things we have covered up. Now if we talk about invasive species, these are those species which are foreign, right? Foreign, or you can say they are non-native. That means not native, right? They come from the outside source, and they are, you can say, they undergo asexual reproduction. They have no predators, less predators. That's why they are able to grow very rapidly, right? And as they undergo asexual reproduction, so they are dependent only on themselves. They do not have to depend on the partner. Keystone species, what is the benefit of keystone species is what they are disproportionate to its abundance. They are disproportionate to its abundance. Means even if they present in more amount or in small amount, the effect will be same. Let me write here part 1 covered. Okay, next we will see generalist species. In case of generalist species, we have seen what? We have seen that they are basically, they can adjust to any environment, adjust to wide range of environment. कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह में रख दो, दे विल गेट एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट. लेकिन जो हमारे स्पेशलिस्ट स्पीसीज हैं वो आपके कैसे हैं? स्पेशलिस्ट स्पीसीज वो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट में रहते हैं. मतलब क्या? वो एक स्पेसिफिक जगह में रहते हैं, उनको वो हर एक जगह में नहीं रह सकते हैं, राइट? दे एडजस्ट, और यू कैन से दे आर वेरी चूजी. चूजी भी आप बोल सकते हो, और यू कैन राइट दे एडजस्ट टू नैरो रेंज ऑफ एनवायरनमेंट. Narrow range of environment. So this we have done in part 1, and in part 2. In part 2 we will be dealing with what? We will be dealing with umbrella species, then flagship species, indicator species. This we will be looking. Coming to umbrella species. Umbrella species, umbrella हम क्यों यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं? हम डेली डे टू डे लाइफ में हम umbrella क्यों यूज करते हैं? umbrella हम यूज करते हैं to give protection
प्रोटेक्शन के लिए हम अम्ब्रेला यूज करते हैं, राइट। तो उसी तरह से जो अम्ब्रेला स्पीसीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सराउंडिंग। मान लो मैं अगर इसको समझाऊं, मान लो यहाँ पे एक एक्स एनिमल है, राइट। इस एक्स एनिमल क्या है, ये थोड़ा सा एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब इस स्पीसीज को प्रोटेक्शन देने के लिए ये जहां पे फीड करते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। ये जहां पे रहता है, फीडिंग जहां पे ये फीड करता है उसको भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत होगा। जहां ये रहता है मतलब इसका जहां पे हैबिटेट है उसके सराउंडिंग जो भी आपके पेड़ पौधे वो सबको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आप कह सकते हो एक स्पीसीज के वजह से बहुत सारे स्पीसीज क्या हो रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये वो अम्ब्रेला स्पीसीज हैं जो स्पीसीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नियर बाय एरिया या फिर नियर बाय ऑर्गेनिज्म को। The concept of an umbrella species has been used by conservation practitioners to provide protection for other species using the same habitat as the umbrella species. A species with large area requirement for which protection of the species offers protection to other species that share the same habitat. अगर मैं यहाँ पे एक चीज डिफाइन करती हूँ, मान लो ये एक एरिया है, ये क्या है, ये आपका एक एरिया है, राइट। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, राइट, और इसका क्या है, आपका स्पीसीज का नंबर बहुत कम हो रहा है। तो अब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज, हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स क्या क्या, सबसे पहले इसके फीडिंग, मान लो ये अगर इफ इट फीड्स ऑन डियर, अगर ये डियर को खाते हैं तो डियर को भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा या अवेलेबल कराना होगा, राइट। अवेलेबल कैसे कराओगे, जब डियर का कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट ज्यादा होगा, राइट। फीडिंग, फिर दूसरी बात हैबिटेट, जहां ये रहेगा, इन दोनों को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं क्या, एक्स भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड है, राइट। डायरेक्टली कैसे प्रोटेक्ट होगा, जब हम इसके ब्रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, राइट। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्स ऑर्गेनिज्म द अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर अदर एरिया जहां भी ये प्रेजेंट रहेगा, ये एक एक्स ऑर्गेनिज्म है, वो जहां भी प्रेजेंट होगा उस वाले एरिया प्लस वो जो खाएगा उसका फीडिंग सोर्स, ये सब क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। Am I clear to everyone? If you have any doubts, please let me know. अगर मैं आपको एक अम्ब्रेला स्पीसीज का एग्जाम्पल दूं, you can see this. This is an umbrella species, right? This is also umbrella species. अब हम बात करते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज बेसिकली क्या होते हैं, मान लो ये एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, राइट, और यहाँ पे कोई जैड स्पीसीज है जिसका नंबर बहुत ही कम है, तो इस जिसका नंबर कम है, इसको हमें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है या फिर हम इसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो हम इसके ऊपर क्या दे देंगे, एक झंडा दे देंगे। क्यों, किसका झंडा, ये झंडा होगा आपका कंजर्वेशन का झंडा, राइट, क्योंकि हमें इसको कंजर्व करना है ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो आने वाले वक्त पे खत्म ना हो जाए। तो अगर हम फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, क्या, कंजर्वेशन। मैं यहाँ पे बोल में लिख रही हूँ रेड में ताकि आपको याद हो, कंजर्वेशन, राइट। अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज इज अ स्पीसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट, इश्यू, कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज। अगर आप मान लो अगर आप कुछ एनवायरमेंटल कैंपेन कर रहे हो या फिर कुछ भी अवेयरनेस प्रोग्राम आप दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी अगर मान लो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज के हम टैक्स लगाते हैं, राइट। तो ये हो गया क्या, हम किसको झंडा कर रहे हैं, हम किसको एम्बेसडर या फिर किसको आइकॉन की तरह यूज कर रहे हैं, वो हो गया flagship species. This is basically done for conservation, right? Flagship species are usually relatively large and considered to be charismatic in Western cultures.
कैरिस्मेटिक वर्ड आपको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड टू फ्लैगशिप, दैट इज योर कंजर्वेशन, right? Flagship species is a species chosen to raise support for biodiversity conservation, very important in a given place. तो जब भी आपको फ्लैगशिप के बारे में हम बात करेंगे, यू शुड बी वेरी क्लियर कि हम किसी ऑर्गेनिज्म की कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर? फाइन. ये हो गया आपका फ्लैगशिप स्पीसीज. ये भी हो गया आपका, ये क्या है? राइनो. ये क्या है? पोलर बियर. ये सब क्या है? आपका फ्लैगशिप स्पीसीज का एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं डोमिनेंट स्पीसीज का. डोमिनेंट स्पीसीज का मतलब क्या होते हैं? जो हमने कीस्टोन स्पीसीज देखा था, डिसप्रोपोर्शनेट टू अबांडेंस, मतलब नंबर चाहे ज्यादा हो कम हो, वो अपना काम नंबर के हिसाब से नहीं करते हैं. कम होने से भी उतना काम करेंगे, ज्यादा होने से भी उतना ही काम करेंगे. लेकिन जो आपके डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबांडेंस. मतलब जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्ट होगा. मोर इन नंबर मोर इफेक्ट. मोर इन नंबर shows more effect, right? ये हो गया आपका dominant species. Dominant species are the most abundant species in a community, exerting a strong influence over the occurrence and distribution of other species. In contrast, keystone species have effect on communities that far exceeds their abundance. मतलब keystone species का तो community पे abundant के exceeds far, मतलब अबांडेंस से कोई मतलब अबांडेंस कम हो ज्यादा हो इसमें कोई इसका रोल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू नंबर. लेकिन जो डोमिनेंट स्पीसीज होता है, मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है और यहाँ पे भी एक एरिया 2 है. अगर यहाँ पे इसका क्या है? अगर यहाँ पे एक्स ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा है, नंबर मोर, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है? इस ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में हाई है. लेकिन एक मान लो y और x दोनों ऑर्गेनिज्म है, राइट? यहाँ पे नंबर लेस है, यहाँ पे नंबर मोर है, राइट? और दोनों का क्या है? इफेक्ट सेम है. दोनों का ही आपका इफेक्ट सेम है. तो इन दिस केस तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज, राइट? और इन दिस केस इसको हम बोलेंगे क्या? मोर नंबर इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या? डोमिनेंट स्पीसीज. एम आई क्लियर एवरीवन? राइट? ये हो गया आपका डोमिनेंट स्पीसीज. एग्जाम्पल डोमिनेंट स्पीसीज का. अब हम थोड़ा सा क्विक समरी करेंगे जो हमने देखा. क्विक समरी, हमने क्या देखा था? हमने देखा था आपका टाइप्स ऑफ स्पीसीज. जितने भी सारे स्पीसीज है उसके हमने टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में देखा था, राइट? हमने क्या क्या देखा था? पहले था आपका पहले वाला था आपका जनरलिस्ट स्पीसीज, राइट? फिर आपका था स्पेशलिस्ट स्पीसीज, राइट? फिर आपका क्या था? इन्वेसिव स्पीसीज. फिर हमने देखा था कीस्टोन स्पीसीज, राइट? फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था आपका कीस्टोन स्पीसीज. फिर हमने देखा था डोमिनेंट स्पीसीज, राइट? डोमिनेंट स्पीसीज, अम्ब्रेला स्पीसीज, और हमने देखा था फ्लैगशिप स्पीसीज, राइट? हमने देखा था फ्लैगशिप
स्पीसीज। अब हम देखेंगे एक एक करके, राइट। अगर हम जनरली स्पीसीज के बारे में बात करते हैं तो हमें इनका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलते हैं? इनका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलते हैं कि ये आपके वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में मिलता है, राइट। कैन एडजस्ट टू वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। फिर हमने स्पेशलिस्ट स्पीसीज देखा था। स्पेशलिस्ट स्पीसीज में हमने क्या देखा था? दे एडजस्ट होते हैं नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट। एनवायरनमेंट भी आप बोल सकते हो, आप हैबिटेट भी बोल सकते हो, राइट। जो इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं वो क्या शो करते हैं? बेसिकली इट शोज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये आपका नॉन नेटिव होते हैं, ये बाहर से आए हुए होते हैं, राइट। इसको हम फॉरेन स्पीसीज भी बोल सकते हैं, फॉरेन स्पीसीज या फिर नॉन नेटिव स्पीसीज भी हम उसको बोलते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या है? ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं टू इट्स अबांडेंस। ये होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबांडेंस, राइट। जो डोमिनेंट स्पीसीज होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनेट टू इट्स अबांडेंस। ये बेसिकली प्रोपोर्शनेट होते हैं अबांडेंस के साथ। अम्ब्रेला स्पीसीज का काम क्या है? प्रोटेक्शन। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये एक अम्ब्रेला हो गया। मान लो इस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आ गए, सबका क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया, राइट। नेक्स्ट हमने देखा फ्लैगशिप स्पीसीज, जो कि आपका कंजर्वेशन में प्रोवाइड हेल्प करते हैं। ये हो गया आपका टाइप ऑफ स्पीसीज, राइट। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस I will be coming with a new topic tomorrow. Maybe it'll be from immunology. Let's see. Okay, fine then. I'm ending up the class here. If you want to join Unacademy Plus, you can join it. You can also subscribe to our YouTube channel. Let's crack CSIR UGC net. Thank you so much, students, for watching this session. Thank you once again. Bye bye. Take care, everyone. See you soon in the next class.